Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, here we are with another lecture on matrices. In this lecture, we will be discussing about some of the homework problems which I have given to you in the previous lecture. Previous lectures में हमने properties of determinants के बारे में study किया, and then we have solved some of the problems related to them. In continuation to that lecture, we will be solving some more problems here. But before that, let us revise some of the properties of determinants. So the first property of determinants which we discussed was कि एक determinant के केस में अगर हम rows को columns में interchange करते हैं then the value of determinant will not change. यानी कि particular row को एक particular column बना देते हैं then the value of determinant will not change. Then the second property was कि एक particular determinant में हम कोई भी दो rows या कोई भी दो columns को अगर interchange कर दें then the value of determinant will change sign. किन्हीं भी दो पर्टिकुलर रोज या किन्हीं भी दो पर्टिकुलर कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will change sign. Next property is in a determinant if two rows or two columns are identical then the value of determinant is zero. पर्टिकुलर determinant में अगर कोई भी दो rows या कोई भी दो columns सेम होती हैं then the value of determinant will become zero. The next property here is if the elements of a particular row or column of determinant is multiplied by a scalar then the original determinant is also multiplied by that scalar. For example, अगर हमारे पास एक determinant A है, let us say this is this determinant, then इस determinant में इस particular determinant के first column को अगर मैंने 2 से multiply कर दिया then we will be getting a new determinant, let us say that is the determinant B and it will be equal to twice of determinant of A. तो जिस भी element से जिस भी स्केलर से हम एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं सेम एलिमेंट से सेम स्केलर से हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि डिटर्मिनेंट में एक पर्टिकुलर रो में हम लोग किसी दूसरी पर्टिकुलर रो के मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं एंड द डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज. लेट अस से वी हैव ऑपरेटेड दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट कि हमने एक पर्टिकुलर रो 1 में रो 2 के मल्टीपल्स को ऐड कर दिया then the determinant will not change its value. If each element of a row or column of determinant consists of algebraic sum of n terms then the determinant can be expressed the sum of n determinants. यानी कि if we are having a determinant say this इस तरह का अगर एक determinant हमारे पास है and the particular row इस particular column में all the elements are expressed as the sum of two elements. तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट डिटर्मिनेंट में दिस विल बी द कॉलम एंड सेकंड डिटर्मिनेंट में दिस विल बी द कॉलम. तो अ पर्टिकुलर रो एंड अ पर्टिकुलर कॉलम इफ each element of that particular row or column consists of sum of n terms then the same determinant can be expressed the sum of n determinants of same order. Next thing, when will the determinant vanish? If all the elements of one row or column are zero. If let us say this is a determinant इसके एक पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं then this determinant will have the value zero. कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं then the value of determinant is zero. Next is if any two rows or columns are proportional. यानी कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स एक दूसरे की मल्टीपल हैं if they are proportional then also the determinant will get vanished. Now by using these properties of determinant we will be solving all of these problems. So let us come to the first problem. The first problem here is we are having a determinant B whose value is given 0 and we have to prove that ABC is equal to 1. So उसके लिए हम क्या करेंगे, this is a particular determinant and by using the properties of determinant we will solve this determinant and then we will come to this conclusion. तो सबसे पहले this is the determinant B. इस डिटर्मिनेंट B में अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि if a determinant has the particular row or particular column whose all the elements are written as the sum of terms then the determinant will be written as the sum of same number of determinants. तो यहाँ पर determinant B की अगर मैं बात करूँ तो this column 3 is the sum of two terms. यहाँ पर हर एक element जो है it is the sum of two terms. तो determinant B को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं as the sum of two determinants. Let us say this is the determinant 1 and this is the determinant 2.
तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स किस तरह से लिखे? इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट this particular column C3 will become the first terms, and in the second determinant the third column will consist of all the second terms of these elements. तो इस तरह से determinant B को हम लोग two determinants के sum में express कर सकते हैं because column 3 consisted of all the elements as the sum of two terms. Now we have to find out the values of these two determinants. तो उसके लिए यहाँ पर if we see that in this determinant number 1, what is here? फर्स्ट रो में एलिमेंट ए को मैं कॉमन ले सकती हूँ, सेकेंड रो से एलिमेंट बी को कॉमन ले सकते हैं एंड थर्ड रो से एलिमेंट सी कॉमन हो सकता है. तो हमने क्या किया, रो 1 से एलिमेंट ए कॉमन लिया, रो 2 से बी कॉमन ले लिया एंड रो 3 से सी कॉमन लिया. देन वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग. एबीसी को कॉमन लेने के बाद दिस डिटर्मिनेंट 1 रिड्यूसेस टू दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. एंड यहाँ से भी हमने, क्योंकि थर्ड कॉलम में -1 वाज कॉमन, तो थर्ड कॉलम से हमने -1 कॉमन ले लिया एंड दिस डिटर्मिनेंट चेंज टू दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट थिंग, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट बोथ आर सेम. Let us say this is determinant 3 and this is determinant 4. So determinant 3 and determinant 4 both are similar determinants. क्यों? क्योंकि they are made up of same elements. यहाँ पर rows and columns just rearranged हैं. इस determinant 3 में अगर मैं rows और columns को थोड़ा rearrange कर दूँ then we can get the determinant 4. उसके लिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों determinants को same बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस से जो डिटर्मिनेंट 4 है उसे मैं डिटर्मिनेंट 3 में कन्वर्ट करूंगी जस्ट बाय रीअरेंजिंग द कॉलम्स एंड रोज एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो नाउ वी विल बी अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट 4 पर हम डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज C2 गोज टू C3. C2 और C3 रोज को, सॉरी कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया. दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी आर अप्लाइंग हियर. C2 एंड C3 को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे देन वी विल get the determinant like this. Determinant 4 will reduce to this type of determinant. Plus जब भी हम किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर, सॉरी इंटरचेंज करते हैं, then the determinant changes sign. So because कॉलम्स को चेंज करने पे this determinant change the sign, so माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया. इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक और ऑपरेशन लगाएंगे एंड दिस विल बी अगेन C1 goes to C2. C1 एंड C2 यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में C1 एंड C2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे देन वी विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. C1 एंड C2 को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट बनता है, बट अगर हम कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं देन द डिटर्मिनेंट चेंजेस वैल्यू. सो दिस वाज द प्लस डिटर्मिनेंट, यहाँ से हमने माइनस साइन इसके आगे ऐड कर दिया बिकॉज द डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन व्हेन एनी टू कॉलम्स और रोज आर मल्टीप्लाइड. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया. अब नाउ दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट बोथ आर सेम, दोनों सेम है तो इसे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज एक डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर ही तो आता है इन रिजल्ट में. इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग कॉमन ले लें देन वी विल बी लेफ्ट विद ABC -1 एंड दिस डिटर्मिनेंट. So from here, if product of two quantities is equal to 0, this means either one quantity is 0 or the other one. तो यहाँ से ABC -1 is equal to 0 and ABC की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई. Just by using the properties of determinant, we have solved this determinant, original determinant D, and then we have found out the result. The next question we have a determinant P. इस टाइप का एक determinant given है, उसे मुझे पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. सो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये है डिटर्मिनेंट बी, जिसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ अगेन पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में बात करें तो ये कॉलम जो है वो टू टर्म्स का सम है, यानी कि दिस मीन्स कि इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर रिटन एज द सम ऑफ टू टर्म्स. सिमिलरली कॉलम 2 में जितने भी एंट्रीज हैं वो सभी टू टर्म्स का सम है. सिमिलरली कॉलम 3 के सभी एलिमेंट्स जो हैं दे आर रिटन एज द सम ऑफ टू टर्म्स. नाउ यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिटर्मिनेंट की कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट is written as the sum of n terms, then this determinant can also be expressed as the sum of n determinants of same order. तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, पर्टिकुलर रो इस पर्टिकुलर कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं.
अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ तो इट इज इन दिस केस ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग द सम ऑफ टू टर्म्स हियर। तो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, जहाँ पर एक कॉलम में हमारे पास बी क्यू वाई आएगा एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट विच कंसिस्ट ऑफ सी वन एज कॉलम 1 एज सी आर जेड। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट बी को हमने इन दो डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर दिया और बाकी के जो दो कॉलम्स हैं दे विल बी एज इट इज, उन्हें एज इट इज रख लिया। अब लेट अस से दिस इज द डिटर्मिनेंट 1 एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट 2। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है to we have to reduce this to this type of stuff. Now first of all first determinant की बात कर लेते हैं। This is the first determinant. अब इस first determinant में भी same property हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम की बात करूँ, कॉलम 3 की बात करूँ, तो कॉलम 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर द सम ऑफ टू टर्म्स। इस वजह से इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो दो डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे? पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को जब हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स के सम में लिखते हैं, आउट ऑफ दोज टू डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो सेम रहेंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट जैसे, यानी कि इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विल बी एज इट इज, बट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस a p and x will form the first column of this determinant and b q y will form the third column of this second determinant। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर कॉलम को स्प्लिट कर दिया ए पी एक्स एंड बी क्यू वाई में, एंड देन वी हैव एक्सप्रेस दिस डिटर्मिनेंट 1 एज द सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की बात करूं तो ये सेम डिटर्मिनेंट एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, बट इस डिटर्मिनेंट में क्या है, इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर इक्वल। अगेन वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने पढ़ा कि एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रोज अगर सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट वैनिशेस। बिकॉज यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम इन दिस डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो दिस डिटर्मिनेंट इज हैविंग द वैल्यू 0, दिस डिटर्मिनेंट विल बी एज इट इज। तो फर्स्ट जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है दैट रिड्यूसेस टू दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। अगेन जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम है whose elements are written as sum of two terms, जिस वजह से हम इस डिटर्मिनेंट 1 को फर्दर दो डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर सी आर जेड विल फॉर्म द कॉलम 2 ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड ए पी एक्स विल फॉर्म द कॉलम 2 ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट, एंड इन दिस वे फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज कन्वर्टेड टू द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहाँ पर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम होने की वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड दिस डिटर्मिनेंट विल बी एज इट इज। तो डिटर्मिनेंट 1 जो यहाँ पर हमने यूज किया था उसकी वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, बट हमें इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट चाहिए। दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट आर सिमिलर, बट यहाँ पर सिर्फ कॉलम्स और रोज का इंटरचेंज है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के डिटर्मिनेंट को इसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए वी विल इंटरचेंज द कॉलम्स एंड रोज। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी यूज की C1 goes to C3। इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को अगर हम इंटरचेंज कर दें देन वी विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, column 3 has become column 1 and column 1 has become column 3 here। Also जब भी हम दो columns को interchange करते हैं then this determinant changes sign। Already ये determinant plus determinant था, because we have interchanged the columns तो यहाँ पर sign change हो गया, it becomes negative। Now यहाँ पर इस determinant को फिर से इस particular determinant में convert करने के लिए हम फिर से columns को interchange करेंगे। Now in this case we will be interchanging the columns C2 and C3। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को अगर हम इंटरचेंज कर दें देन वी विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को क्योंकि हमने चेंज किया है, इंटरचेंज किया है, देन दिस डिटर्मिनेंट विल चेंज साइन। ये ऑलरेडी नेगेटिव डिटर्मिनेंट था, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो नाउ डिटर्मिनेंट आई हैज बिकम दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ वी आर लेफ्ट विद द डिटर्मिनेंट सेकंड। इस डिटर्मिनेंट सेकंड को भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट को इस टाइप के डिटर्मिनेंट में रिड्यूस किया उसी तरह से सेकंड डिटर्मिनेंट को भी इस टाइप के डिटर्मिनेंट में रिड्यूस करेंगे। देन वी विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 and 2 डिटर्मिनेंट हियर।
to find out the value of B. Now here the determinant second is like this. Determinant second के केस में देखें तो column 2, first of all we are focusing on column 2. column 2 की सभी entries are expressed as the sum of two terms. इस वजह से इस पूरे determinant दो determinants के sum के terms में express कर सकते. So this determinant second becomes, यहाँ पर first determinant में CRZ will consist of column second and in this second determinant APX will form the second column. तो इस तरह से इस particular determinant को हमने दो determinants के form में express कर दिया, जहाँ पर the column 1 and column 3 of all these three determinants have column 1 and column 3 same, but यहाँ पर column 2 was expressed as the sum of two terms, इस वजह से column 2 जो थे वो change हो गए. After this, अगर मैं इस particular determinant की बात करूँ तो यहाँ पर column 1 and column 2 both are same, because both the columns are same, so इस determinant की value जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. बट ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट सेकंड वुड बिकम दिस डिटर्मिनेंट, यहाँ पर वाला जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो गया. नाउ अगेन डिटर्मिनेंट सेकंड में कॉलम 3 पे अगर हम फोकस करें तो कॉलम 3 के सभी एंट्रीज जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स. एक एलिमेंट जो है दे आर सम ऑफ टू टर्म्स. तो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्दर दो डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स होंगी विल बी द सेम एज द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट सेकंड, बट जो थर्ड कॉलम होगा वो चेंज हो जाएगा. थर्ड कॉलम विल स्प्लिट इनटू टू थिंग्स. यहाँ पर APX जो होगा दिस विल बी द थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड DQY विल कंस्टिट्यूट द थर्ड कॉलम ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट. तो इस तरह से डिटर्मिनेंट 2 को हमने दो डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर दिया. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की बात करूं, दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट में द कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, जिस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैनिश हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड वी विल बी लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट ओनली. तो डिटर्मिनेंट सेकंड जो है इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट बन गया. वी हैव इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स टू गेट दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं C1 goes to C2. अगर इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करें देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. अगेन कॉलम्स को इंटरचेंज किया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में साइन चेंज होगा. तो दिस वाज पहले से ये पॉजिटिव डिटर्मिनेंट था, कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद दिस विल बिकम अ नेगेटिव डिटर्मिनेंट. नाउ अगेन वी विल बी अप्लाइंग अ प्रॉपर्टी हियर टू इंटरचेंज C2 एंड C3. यहाँ पर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को अगर हम इंटरचेंज कर दें देन वी विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. अगेन यहाँ पर एक नेगेटिव डिटर्मिनेंट था, कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद इट विल बिकम अ पॉजिटिव डिटर्मिनेंट, क्योंकि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं देन द डिटर्मिनेंट चेंजेस. ये पॉजिटिव डिटर्मिनेंट आ गया. अब द डिटर्मिनेंट D is equal to determinant 1 and 2. determinant 1 is like this, determinant 2 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी, then the determinant D comes out to be this determinant which we have 2. This is our final result. तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को simplified determinant में कन्वर्ट कर सकते. So this whole of this determinant is converted to this simple determinant. Now we have the third question here. हमारे पास एक determinant है, इस determinant की वैल्यू we have to find out by using the properties of determinant. तो उसके लिए एक determinant को simplify करने के लिए या simple determinant में convert करने के लिए हम क्या करते हैं, we try to create zeros out of it. यहाँ पर हम लोग जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इस डिटर्मिनेंट में. अगर डिटर्मिनेंट में जीरोस क्रिएट होती हैं तो हम लोग इजीली डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर पाते हैं. तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को एक सिंपलर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल एक्सपैंड दैट सिंपलर डिटर्मिनेंट टू गेट द वैल्यू ऑफ p. उसके लिए हमने यहाँ पर दो ऑपरेशंस यूज किए, C1 goes to C1 minus C3. अगर मैं यहाँ पर b स्क्वायर में से इस b स्क्वायर को माइनस कर दूँ देन वी कैन गेट 0 here. Similarly, a square minus this a square will give me 0 here. So depending upon this, I have applied two operations here. Column 1 पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया कि column 1 minus column 3. column 1 में से column 3 अगर मैं subtract कर दूंगी so I will be getting 0 here. Similarly, column 2 पर एक ऑपरेशन लगा दिया,
कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 3 का यूज करके हम लोग जीरोस क्रिएट कर रहे हैं इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इन दोनों ऑपरेशंस को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, C1 एंड C2 पर अप्लाई किए थे हमने ऑपरेशंस, तो C1 एंड C2 विल चेंज, C3 एज इट इज रहेगा। तो डिटर्मिनेंट D में जो कॉलम 3 था वो यहाँ पर एज इट इज रहा आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशंस, बट कॉलम 1 चेंज हो गया। कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स को कॉलम 3 के एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट कर देंगे। b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर। इस तरह से this column 1 gets converted to this type of column after this operation. Now column 2 पर भी एक ऑपरेशन ऑपरेट किया है, वो क्या है, column 2 माइनस column 3, यानी कि column 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें column 3 के एलिमेंट से सबट्रैक्ट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी द फर्स्ट एंट्री, सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी द सेकेंड एंट्री, एंड दिस विल बी द थर्ड एंट्री। इस तरह से column 2 भी चेंज हो गया आफ्टर अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशंस। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करती हूँ, नाउ यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। अर्लियर क्लासेस में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इस टाइप की एक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट विल गिव मी बी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए। इस टाइप की आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पर यूज की। सिमिलरली this term is simplified by using this identity and it will become this. Similarly same property हम लोग इन दोनों एंट्रीज पर भी अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों एंट्रीज भी चेंज हो गई एंड these two entries become 0। तो इस डिटर्मिनेंट को फर्दर हमने सिंप्लीफाई करके इस टाइप का डिटर्मिनेंट में रिड्यूस कर दिया। अब मैं इस डिटर्मिनेंट में देखूं तो कॉलम 1 में b प्लस सी प्लस ए इज कॉमन। सिमिलरली कॉलम 2 में b प्लस सी प्लस ए कॉमन है, तो कॉलम 1 से हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं एंड कॉलम 2 से फिर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं। एंड यहाँ से ये दोनों टर्म्स कॉमन निकालने के बाद दिस डिटर्मिनेंट will be converted to this type of determinant and we are left with these three columns। अब हम लोग फिर से डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे सिंप्लीफाई करने के लिए these are the two terms। यहाँ पर अगर मैं सभी टर्म्स की बात करूं सो दीज आर द लीनियर टर्म्स एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सिंगल टर्म्स है, बट यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड भी करती हूँ तब भी यहाँ पर ये जो स्क्वायर की टर्म है इट विल मेक माय कैलकुलेशन लेंथी। तो इस टर्म को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस टर्म को सिंगल टर्म में रिड्यूस करने के लिए वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी r3 गोज टू r3 माइनस r1 प्लस r2। ये हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर एंड b स्क्वायर अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक ही सिंगल टर्म आ जाएगी 2ab। तो इस पर्टिकुलर टर्म को सिंगल टर्म में रिड्यूस करने के लिए आई एम अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो रो 3 पर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो सिर्फ रो 3 ही चेंज होगी, रो 1 एंड रो 2 विल बी एज इट इज। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद रो 1 एंड रो 2 दे विल बी सेम, बट रो 3 चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज समवट सिंप्लीफाइड। यहाँ पर -2 कॉमन है, रो 3 में से वी कैन टेक इट आउट कॉमन, -2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सो वी विल बी लेफ्ट विद दिस टाइप ऑफ। अब ये थोड़ा सिंपलर डिटर्मिनेंट है, इसे हम डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं। So let us expand this type of determinant by using the row 1। रो 1 के along अगर हम इस determinant को simplify करते हैं, expand करते हैं, तो this term will be as it is as above। यहाँ पर b plus c minus a, this will be c plus a minus b into ab minus ab square। ये टर्म आ गई। उसके बाद after this is 0 and a square into 0 minus this term। अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करती हूँ, then I will be getting this type of expression। Now we just need to simplify this expression to get the desired result। We were having this type of expression। इस टाइप के एक्सप्रेशन में से अगर मैं इस टर्म को देखूं, इस टर्म में से ए बी को कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए बी को, मैंने माइनस ए बी को यहाँ से कॉमन ले लिया एंड देन वी आर लेफ्ट विद ए प्लस सी हेयर एंड ये टर्म एज इट इज थी। उसके बाद ये जो सिंपल टर्म हमारे पास ऑलरेडी थी मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों टर्म्स की बात करें तो माइनस ए बी एंड माइनस ए बी, इस पूरी टर्म में से एंड इस पूरी टर्म में से माइनस ए बी कॉमन आ सकता है, वही माइनस ए बी मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस बिकम्स प्लस एंड वी आर लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स हियर। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है इस एक्सप्रेशन की।
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एंड इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए दिस विल बी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी एंड ए सी विल गेट कैंसल्ड, ए बी एंड ए बी विल गेट कैंसल। तो ये टर्म तो ऑलरेडी थी हमारे पास, उसके साथ उसे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी मिला। तो दिस डिटर्मिनेंट गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स वैल्यू एज दिस। तो इस तरह से हमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एक्सपेंडिंग द सिंपल डिटर्मिनेंट्स आफ्टरवर्ड्स। नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर वी आर हैविंग अ डिटर्मिनेंट हेयर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। वी हैव टू सॉल्व फॉर x, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x आउट ऑफ हेयर। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर सिमिलर एलिमेंट्स, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। बस इन दोनों टर्म से ये पूरा डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ है। तो उसके लिए इस टाइप के डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म बनाने के लिए या तो हम लोग रो वाइज इस टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, या फिर कॉलम वाइज इस टाइप का एक ऑपरेशन लगा सकते हैं वेयर वी आर एडिंग ऑल द 3 रोज और ऑल द 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर इस टाइप का एक ऑपरेशन अगर मैं यूज करूँ, c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो c1 पर ऑपरेशन लगाया है तो कॉलम 1 विल चेंज, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज है। ठीक है, यहाँ से कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज है, बट आफ्टर ऑपरेशन कॉलम 1 गेट्स कन्वर्टेड to this type of stuff because we have operated the column operations। तो यहाँ पर a plus x minus a plus a minus x and plus a minus x, इन तीनों टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं then I will get 3a minus x। Similarly सेकेंड केस में भी ये तीन टर्म्स हैं, इन्हें ऐड कर देंगे we will be getting 3a minus x। इन तीनों टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे we will be getting थर्ड एंट्री ऑफ कॉलम 1। अब यहाँ पे कॉलम 1 की बात करें तो कॉलम 1 में 3a minus x को हम कॉमन ले सकते हैं। इसे कॉमन लेने के बाद वी हैव क्रिएटेड 1 हियर। तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट में 1 हम लोग क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग यहाँ पर जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, so that this determinant can reduce to a simpler determinant which can be expanded easily। तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया था, दे वर एज इट इज। कॉलम 1 में से हमने 3a minus x को आउटसाइड ले लिया। अब यहाँ पर वी आर गेटिंग 1 हेयर। इन एंट्रीज 1 में से हम यहाँ पर जीरोस क्रिएट कर सकते हैं किन्हीं भी दो पोजीशंस पे। सो लेट अस से इस पोजीशन और इस पोजीशन पर हम क्या कर रहे हैं, जीरोस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए वी विल बी अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग जीरोस हेयर। रो 2 एंड रो 3 पर हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए, रो 1 इज एज इट इज, 3 माइनस x एज इट इज था, रो 1 भी एज इट इज है, but row 2 पर operations apply किए, so this row 2 gets converted to this type of form and row 3 gets converted to this type of form। तो यहाँ पर जीरोस क्रिएट करने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट है और सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंडिंग बाय दिस डिटर्मिनेंट बाय कॉलम 1। कॉलम 1 में दो जीरोस हैं, तो इस कॉलम 1 से हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, देन वी विल बी गेटिंग 4x स्क्वायर माइनस 0, 4x स्क्वायर माइनस 0 आउट ऑफ इट। नाउ यहाँ से हमें फैक्टर्स ऑब्टेन हो गए हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस विल बी 3a माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो 0 तब होगा इफ वन क्वांटिटी इज 0 और द अदर क्वांटिटी इज 0। तो दिस कम्स टू द पॉइंट 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इन्हें सॉल्व करके हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। So by using the properties of determinant, we have simplified this determinant to a particular determinant here, and इस simplified determinant को हमने solve किया तो हमारे पास x की values आ गई। Now we have another question। यहाँ पे हमें एक determinant d given है, उस determinant को हमें इस particular expression के equal prove करना है। So we are having this determinant d here। इस determinant d में मुझे इस टाइप का expression abc चाहिए and this टाइप का stuff चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लेट मी मल्टीप्लाई रो 1 बाय 1 बाय ए। इस रो को 1 बाय ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 2 को 1 बाय बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड रो 3 को 1 बाय सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। इफ वी डू दिस
then this particular determinant will reduce to this type of determinant. यहाँ पर 1 plus a को 1 by a से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get this term. इसे हम 1 by a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम 1 by a से मल्टीप्लाई करेंगे, we will be getting this type of term. रो 2 पर भी हमने एक ऑपरेशन लगाया है, so this रो 2 will get converted to this type of stuff. and रो 3 पर भी ये ऑपरेशन लगाया है, and according to this operation रो 3 जो होगी वो इस टाइप की रो में कन्वर्ट हो जाएगी. बट अगेन यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट की तीनों रोज को कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, then the determinant will also get multiplied with the same factor. तो अगर मैंने रो 1 को 1 by a से मल्टीप्लाई किया है, so this d will also get multiplied with 1 by a. रो 2 को हमने 1 by b से मल्टीप्लाई किया है, so this will also again be multiplied with 1 by b. सॉरी, रो 3 को हमने 1 by c से मल्टीप्लाई किया है, तो d determinant will also get multiplied with 1 by c. तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, लेटर से उसकी वैल्यू आ रही है x. तो अगर इस x को मैंने किसी पर्टिकुलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि मेरे पास डिटर्मिनेंट d ही रहे, डिटर्मिनेंट d की वैल्यू चेंज ना हो. तो वही चीज हमने की है, रो 1 को रो 2 को एंड रो 3 को हमने जब मल्टीप्लाई किया कुछ फैक्टर से, सेम फैक्टर से हमने पूरे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया ताकि ये डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहे. तो 1 by a 1 by b 1 by c से जब हमने मल्टीप्लाई किया सभी रोज को, तो उसी सेम फैक्टर से 1 by a 1 by b एंड 1 by c से हमने होल डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया ताकि डिटर्मिनेंट b जो है वो अनचेंज्ड रहे. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस फैक्टर हियर. नाउ आफ्टर दिस अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सो दिस 1 plus a by a becomes this, 1 plus b by b becomes this and 1 plus c by c becomes this. इन तीनों एंट्रीज को मैंने सॉल्व कर लिया, बाकी की सभी एंट्रीज सेम थी. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पर ए बी सी का जो फैक्टर था वो तो हमने ऑब्टेन कर लिया जो हमें चाहिए था. अब मुझे इस टाइप का एक स्टफ चाहिए. इस टाइप का स्टफ कैसे आएगा? अगर मैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में देखूं, तो हमारे पास एक टर्म है 1 plus 1 by a, 1 by b and 1 by c. अगर इन तीनों को मैं ऐड कर लूं, ठीक है, 1 plus 1 by a 1 by b and 1 by c, अगर इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, then we will be getting this type of term. So based upon that I have used here this type of operation, r1 goes to r1 plus r2 plus r3. तो इन सभी रोज को अगर मैं ऐड कर दूं, then I will be getting this type of expression. तो रो 1 में हमने ऑपरेशन लगाया है, तो रो 1 will change, रो 2 and रो 3 will be as it is. रो 2 as it is रहेगी यहाँ पर, रो 3 भी as it is रहेगी, बट रो 1 चेंज हो जाएगी. तो रो 1 में 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c इस टाइप का फैक्टर आएगा. सिमिलरली इन तीनों को ऐड करके मुझे ये फैक्टर मिलेगा एंड इन तीनों को ऐड करके we will get this type of factor. Now ये जो फैक्टर है, let us name this factor कैपिटल A. ये कैपिटल ए फैक्टर जो है पूरी रो 1 में कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन बाहर निकाल लिया. ABC ऑलरेडी था, ये फैक्टर भी हमें मिल गया A. अब हमारे पास इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट बचता है. इस डिटर्मिनेंट को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 1 क्रिएट हो गए हैं. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज इन तीनों प्लेसेस में से किसी भी 2 प्लेसेस पर हम लोग जीरोस क्रिएट करेंगे और डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे. तो वी वर हैविंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. अब मैं क्या करती हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन एंड इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जीरोस क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस. तो इन दोनों प्लेसेस पर जीरोस कैसे होंगी, C2 goes to C2 minus C1 एंड C3 goes to C3 minus C1. इस 1 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा, इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा. तो हमने 2 ऑपरेशंस लगाए कॉलम 2 एंड कॉलम 3 पे फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. these फैक्टर्स फॉर कॉमन, उन्हें हमने एज इट इज रखा. यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस लगाए, कॉलम 1 पर कोई भी ऑपरेशन नहीं ऑपरेट किया, तो कॉलम 1 विल बी एज इट इज. एंड कॉलम 2 की अगर मैं बात करूँ, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 minus 1 would be 0. 1 plus 1 by b minus 1 by b, this will be 1 and this factor minus this factor will give me 0. Similarly C3 पर ये ऑपरेशन लगाया है, C3 minus C1, तो 1 minus 1 0, 1 by b minus 1 by b it will be 0 and इस फैक्टर को 1 by c में से माइनस करेंगे, this will be 1. तो इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगा. अब क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रो में हमें 2 जीरोस मिल गई हैं, देन वी कैन एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट एज इट इज. अगर मैं रो 1 के अलोंग भी इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूँ,
So this determinant will be 1 into 1 minus 0, this will be 1. तो इस determinant की value 1 आ जाएगी and hence whole of this determinant will be having this type of value. तो इस तरह से determinant D को original determinant को हमने एक simplified determinant में पहले तो reduce कर दिया, उसके बाद इस simplified determinant की value को find out करने के बाद हमें determinant D की value मिल गई. So this was all about today's lecture. In this lecture, we have solved some of the problems related to the properties of determinant. In the upcoming lectures, we will be dealing up with some more topics related to determinants, like the Cramer's rule and the orthosymmetric, skew-symmetric determinants, conjugate elements, etc. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.